Hello students, let's continue with the topic that we were discussing. Children, one or two lectures we have been discussing regarding money. We have seen the definitions for money. Actually, we also saw what is this barter system, then what are the difficulties of the barter system, then how it gave rise to the monetary economies. Then we defined money, then we understood what is the evolution of money, that is called as the types of money. Today's lecture, children, we'll just try to understand what are the qualities of money, and secondly we'll just wind up with what are the functions of money. Okay, now to start with, children, qualities of money. What are the qualities that are required to be inherent with money? The basic quality, children, that is required, which says that money should have general acceptability. General acceptability का मतलब क्या होता है? That money, children, is something which has to be accepted for by everyone for exchange purpose. If anybody raises a doubt while accepting money, then that is actually not called as money. Children, if I am giving a note of 500 rupees to someone, and if that person doesn't accept it, then I think that money would not be working as per the definition, because it should have general acceptability, easily accepted for all exchange purpose. कभी ऐसे हुआ है कि आपने सामने वाले को पैसा आगे किया है और फिर उसने बोला कि नहीं लेता नहीं मैं पैसा नहीं? I think by one or the other way, the other person will be readily accepting this money, and that is by the first quality, children, that is general acceptability. Now checks, children, they do not have general acceptability. मतलब checks देते वक्त सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट भी कर सकता है. That is why that is not called as money. That is called as near money. It's a substitute for money. But the notes and coins that exist, children, in the economy are basically referred to as money because they have got general acceptability. The second feature, children, that we have is called as divisibility. Divisibility का meaning क्या होता है, children? That notes, मतलब अलग अलग denominations होते हैं बच्चों लोग पैसे के. अच्छा, ये जितने भी denominations रहेंगे उसके कुछ values अलग अलग होते हैं. जैसे कि we come across the coins ना of 1 rupee, 2 rupee, 5 rupees, 10 rupees, recently 100 rupees का coin which was introduced. And when it comes to notes, children, we got a 1 rupee note. Achha, along with that we got presently like 1 rupee, 5 rupee, 2 rupees. You don't see them in circulation, so we generally start it with 10 rupees. So 10, 20, achha, then 50, 100, 200, 500 and 2000, children. These are the various denominations that exist here. तो आप किसी भी नोट को लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपके पास 100 रुपीज है, तो आपको पता है हम लोग उसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर डिनोमिनेशंस. मतलब आप एक एक रुपए के 100 पार्ट्स में डिवाइड करो, उसको 2-2 रुपए के 50 पार्ट्स में डिवाइड करना, 5-5 रुपए के बच्चों लोग 20 नोट्स में, मतलब 20 कॉइन्स में डिवाइड कर सकते हैं. अच्छा, या फिर एग्जाम्पल 10-10 रुपए के 10 नोट्स या फिर 10 कॉइन्स, 20 रुपीज के 5 नोट्स, चिल्ड्रन, या फिर 50 रुपए के 2 नोट्स. आपने देखा हर एक पैसे के डिनोमिनेशन को हम लोग स्मॉलर ट्रांजैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, और इससे भी चलो ट्रांजैक्शंस आसान होते हैं. इमेजिन करना बच्चों कि अगर हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते थे, तो आपने 5 रुपए की चीज की और आपने 200 रुपए दिए और फिर सामने वाला बोले ठीक है राउंडेड अप हो गया, अभी वापस कुछ नहीं मिलेगा, देन इट वुड बी अ ट्रेजेडी फॉर यू ना. हाँ, सो दैट इज व्हाई, चिल्ड्रन, वी अज्यूम दैट डिविजिबल होना चाहिए पैसा. अच्छा, along with divisibility, children, we also require what is known as durability. Durable word का मतलब होता है बच्चों long lasting. तो money should have the quality और characteristic और feature of durability. अच्छा, currency के जो notes होते हैं, मतलब either we are talking about the currency notes, और secondly, children, we could also be talking about the coins. इनको हम लोग कितनी बार transact करते हैं बच्चों लोग, and they keep on changing so many hands, and they will continue to be in circulation for long years. Why is it possible, children? Because when they make those notes and coins, they are made durable. जैसे बच्चों लोग नोट्स को मतलब आप ज्यादा बार हैंडल करोगे तो फिर वो फटना चालू होता है ना. जैसे अगर आपने डॉलर्स को कभी ऑब्जर्व किया रहेगा तो उसमें कुछ मतलब क्लॉथ का कंटेंट होता है, पेपर का कंटेंट होता है बच्चों. दैट इज व्हाई दे आर नॉट इजीली डिस्ट्रॉयड. अपने यहाँ पे कैसे 4 बार अगर पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में गया तो फिर वो गायब हो जाता है. And people have got very pathetic ways of handling that currency and storing it at different places, so that also might be
concern because durability gets affected children. Okay, 3 features हो गए बच्चों लोग. Number 1, they should be generally accepted. दूसरा, बड़े डिनोमिनेशंस को छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड करने को आना चाहिए. तीसरा, ड्यूरेबल, दैट मीन्स दे शुड बी लॉन्ग लास्टिंग. अच्छा, फोर्थ वाला फीचर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन चिल्ड्रन, इट्स टॉकिंग अबाउट कॉग्निजिबिलिटी. नाउ व्हाट इज कॉग्निजिबिलिटी? कॉग्निजिबल का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज करके एक वर्ड आता है चिल्ड्रन, उसमें से कॉग्निजिबल बोलते हैं. इजीली रिकॉग्नाइज्ड. बच्चों लोग, पैसा कहीं पे भी, किधर अंधेरे में, उजाले में, रोड पे गिरा हुआ, कहीं पे किसी के हाथ में दिखा तो फटाक से कैसे अपने एंटेनास वहां पे, मतलब लाइक नेटवर्क वहां पे अट्रैक्ट होता है ना बच्चों लोग. कभी ऐसे हुआ था कि लाइक मतलब 200 रुपए का नोट गिरा है, फिर आप वहां से जा रहे थे, आपको दिखा नहीं? नो, वी विल बी इजीली कैचिंग साइट ऑफ दैट चिल्ड्रन. और इसलिए पता है चलो, नोट्स को बनाते वक्त उनको डिस्टिंक्टली बनाया जाता है. कुछ मार्क्स होते हैं ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो. अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 500 रुपए का नोट आगे किया है बच्चों लोग, तो फिर वो सामने वाले को फटाक से पता चलता नहीं 500 रुपीज का नोट है. 200 का 2000 का आगे किया तो फटाक से उसको पता चलता है कि 2000 का नोट है. एंड दे आर नोट सो, और फिर हर एक नोट को अलग साइज, अलग कलर, that is why they are made so distinct and they are made so unique that you easily recognize these notes that are existing children. Okay, acha, and point number 5 children, it's talking about portability. Portable ये word का मतलब होता है children easily carried from one place to another place. So money should be easy to carry from one place to another place without any डिफिकल्ट, मतलब बिना किसी दिक्कत के पैसे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आना नहीं चाहिए, या फिर एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए. अगर आप 10,000 रुपए एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का खर्चा अगर 1000 रुपए होगा तो चलेगा क्या? नहीं, उसको फ्रीली हम लोग कन्वीनियंस के साथ में कैरी कर सकते हैं ना. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करेंसी नोट्स, अभी 2000 का नोट्स आ गया, उसके बाद में अगर आप 1 लाख का बंडल बनाओगे तो हार्डली बच्चों लोग कैसे 50 नोट्स आते हैं ना उसमें. इट्स सो स्मॉल, यू कैन इजीली कैरी इट दैट. हाँ, सो दे आर पोर्टेबल, वी कैन से चिल्ड्रन. सो एज यू कैन सी these different features or these different characteristics children. Along with that, point number 6 which is talking about homogeneity. Homogeneity का मतलब होता है एक डिनोमिनेशन, एक वैल्यू के सब नोट्स कैसे होने चाहिए? हेट्रोजेनस के होमोजेनस. होमोजेनस मीन्स चिल्ड्रन उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, उसका डिजाइन, उसका जो भी फीचर्स होता है, दे ऑल नीड टू बी आइडेंटिकल इन इट्स फीचर्स so that they are easily recognized. 500 रुपीज का कोई भी नोट आप मार्केट में देखते तो उस टाइप का सिर्फ एक ही नोट होता है ना. And that is why children, it is easy for us to recognize that money and the other person will accept that money without any confusion in his mind. But that is only possible. लेकिन 500 के जैसे अगर दिखने वाले 5 अलग अलग टाइप के नोट्स रहेंगे और चलो, तो फिर लोगों को लेते वक्त ऑटोमेटिकली उसको चेक करके लेना पड़ेगा ना. Yes, that is why they need to be homogeneous. And lastly children, we are talking about stability. Stability का मतलब this is something related to money value. पैसे का जो कीमत होता है, उसका जो वैल्यू होता है, उसको स्टेबल होना बहुत जरूरी है बच्चों. आज अगर आपको कोई 500 रुपीज दे रहा है और आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट आएगा कि अरे 500 रुपए तो मुझे दे रहा है, लेकिन कल 500 नहीं, इसका सिर्फ 200 रुपए रहेगा, मतलब वैल्यू कम होने वाला है, तो फिर आपको 500 रुपीज एक्सेप्ट करते थे? नो. हाँ, तो आई थिंक कम से कम आने वाले कुछ दिनों तक उसका वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए. इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो कमोडिटीज को, सर्विसेज को मतलब अदला बदली करने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे पैसे का यूज करते हैं. अच्छा, एंड दिस गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेस्ड इन फ्यूचर एज पर रिक्वायरमेंट्स. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस 7 पॉइंट्स दे इंडिकेट व्हाट आर द डिफरेंट characteristics or qualities of good money, we can say. So they should be stable. The qualities need to be homogeneous. Along with that children, they should be recognized properly, divisible hone chahiye, generally accepted. Money children is a combination of all these different qualities that make money good money, right? Yes. And then children, we come to this last discussion that we have, what is referred to as the functions of money. Now they are quite simple. Functions of money में we have got primary functions, secondary functions होते हैं बच्चों लोग, and then we have something what are called as contingent function.
तो प्राइमरी फंक्शंस में द फर्स्ट पॉइंट दैट दे आर मेंशन्ड हियर इज टॉकिंग अबाउट द मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चिल्ड्रन, पैसे का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि चीजों को अदला बदली करने के लिए पैसा काम आता है। सो दैट इज इट इज कॉल्ड एज अ मीडियम ऑफ exchange. Any commodity, I'm saying any commodity can be purchased or sold for money. कोई भी commodity है बच्चों लोग, कोई भी सर्विस है, उसको हम लोग पैसा देके खरीद सकते हैं या फिर पैसा लेके बेच सकते हैं। एंड दैट इज वाई, तो बच्चों लोग कहीं पे भी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर एक प्रोडक्ट जा रहा है तो सामने से क्या आता है? पैसा। अगर हम लोग एक सर्विस प्रोवाइड करें तो सामने से क्या आता है? पैसा। बच्चों अगर हम लोग एक सर्विस यूज करें तो हम लोग क्या पे करेंगे? पैसा। अगर हम लोग एक कमोडिटी परचेस करें तो हम लोग क्या पे करेंगे? पैसा। दैट मीन्स चिल्ड्रन, जैसे बार्टर ट्रांजैक्शंस में वी यूज्ड टू हैव दोस टू डिफरेंट कमोडिटीज ना दैट आर बीइंग एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या होता है? इट्स अ कमोडिटी और अ सर्विस, द अदर थिंग हैज टू बी मनी एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मनी इज नोन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देन चिल्ड्रन, इट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। क्या बोला? मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब किसी भी चीज का वैल्यू, किसी भी कमोडिटी का या फिर किसी भी सर्विस का अगर आपको वैल्यू पता करना है कि इसका मूल्य क्या है करके, तो चिल्ड्रन इट्स ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और बच्चों लोग पैसे की वजह से हम लोग अलग अलग कमोडिटीज के प्राइसेस को कंपेयर भी तो कर सकते हैं। जैसे चिल्ड्रन, एंड वी हैव गॉट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अकाउंट, मतलब अलग अलग यूनिट्स यूज किए जाते हैं अकाउंट्स के। जैसे चिल्ड्रन, वी आर ऑल अवेयर दैट इन इंडिया द यूनिट ऑफ अकाउंट इज मेंटेन इन रुपीज। इफ यू ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चिल्ड्रन, वहां पे यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है? डॉलर्स। यूके चिल्ड्रन, इट्स अगेन पाउंड। इफ एग्जाम्पल जापान, तो जापानीज येन होते हैं। बच्चों लोग, आप कुछ पैसा कमाओ या फिर आप पैसा खर्च करो, अच्छा, या फिर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे असेट्स होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग होता है, प्लांट एंड मशीनरी होता है, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स होते हैं, या फिर हमारे बिजनेस के बच्चों लोग बहुत सारे लायबिलिटीज होते हैं। नाउ यू नो दैट ऑल दीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमारे कंपनी के पास 2 करोड़ के असेट्स हैं, हमारी कंपनी के 1 लाख का या फिर 1 करोड़ का लायबिलिटी है, या फिर एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने इस साल 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर किया। एंड इन एवरी केस चिल्ड्रन वी ऑब्जर्व दैट the values are expressed in terms of money, that is it is called as measure of value and unit of account. तो बच्चों ये 2 primary functions हो गए, that money is used as a medium of exchange and money is a measure of value. अच्छा, now let's look at the secondary functions children. Now when you look at these secondary functions, you come across 3 different points that are mentioned here. Number 1, standard of deferred payment. चलो, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि लाइक आप लोन लेना आसान था। जैसे कि आपको चावल की जरूरत है, आपने किसी से 10 क्विंटल चावल ले लिए, लेकिन उसका रीपेमेंट जो था वो डिफिकल्ट था। व्हाई? बिकॉज इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, कैटल। अभी पैसे ने बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना। तो अभी आप कोई भी परचेज करते हो चीज, जैसे कि आपने घर खरीद लिया, अभी फ्यूचर में आपको क्या उसको बदले में घर थोड़े ना देना इंस्टॉलमेंट में, और आप इंस्टॉलमेंट में घर कैसे दोगे? इसका मतलब क्या होता है? वी आर सब्स्टिट्यूटिंग एवरीथिंग विद द पेमेंट थ्रू मनी। सो पेमेंट्स टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट आर कॉल्ड एज डिफर्ड पेमेंट्स। अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली चिल्ड्रन, द पेमेंट्स टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट आर कॉल्ड एज डिफर्ड पेमेंट। तो जैसे हम लोग ईएमआई पे चीजें खरीदते हैं, राइट, इंस्टॉलमेंट पे जो चीजें खरीदते हैं उसको डिफर्ड पेमेंट बोला जाता है। सो बाय सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर अ टाइम, मनी मेक्स बोरोइंग एंड लेंडिंग इजी। तो आपने किसी से उधार पैसा लिया है कि मुझे 10 लाख देना, मैं तुमको हर साल 1-1 लाख रुपए वापस करूंगा। तो जो आप हर साल 1-1 लाख रुपए वापस करोगे चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट। या फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया है और आपने उसको बोला कि देख हर महीना तो मुझे 10-10 हजार रुपए देने का, तो दिस इज कॉल्ड एज डिफर्ड पेमेंट। याद रखना, कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिफर्ड पेमेंट्स क्या होते हैं, तो बोलने का पेमेंट्स टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट आर कॉल्ड एज डिफर्ड पेमेंट्स। देन चिल्ड्रन वी आल्सो टॉक एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अच्छा, मनी विल एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी जो होता है बच्चों, ये हमारे अभी की जरूरतों को ही सिर्फ पूरा नहीं करता है, लेकिन फ्यूचर में जो आपको वांट सेटिस्फाई करने हैं उसके लिए भी कोई प्रोविजन करके रख सकते हैं। और ये हम लोग कैसे करते हैं बच्चों? दिस इज डन थ्रू सेविंग्स।
So we can say that money links the present and the future. तो अभी अगर आप के पास ज्यादा पैसा तो आप उसमें से कुछ पैसा सेव करके रखते हो, फिर फ्यूचर में जब आपको पैसा मिलेगा तो फिर आप उसको खर्च करते हो, तो मतलब आपने उस वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है जो आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो चिल्ड्रन। जैसे कि देखो आज आपके पास पैसा है, आपको पता है फ्यूचर में आपको चावल लगेगा, तो आप आज ही खरीद के रखोगे तो कितने साल का खरीद के रखोगे ना। इससे अच्छा आप पैसे को स्टोर करके रखना, और 4 साल के बाद आपने वो पैसा निकाल के फिर आपने उसमें से चावल परचेस कर लिया, तो आपने वैल्यू को स्टोर करके रखा है। एंड चिल्ड्रन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, कि मनी enables the value from transfer of value from one person to another person. Children, if someone gives me a mobile and I pay him 10,000 rupees, so he is giving me that mobile and I'm transferring the value of that mobile to that person. Now that's done through money. Careful, from one place to another place, children. Real assets होते हैं ना अपने पास. Now when we are talking about the real assets, children, we could be referring to the building. If जमीन का plot है, एक shop होता है, हाँ खेती का जमीन होता है बच्चों, agricultural land. They can be sold at one place and can be purchased at another place. In the case, children, like I sold my flat in Pune for 40 lakh rupees and I bought another flat of 40 lakh rupees in Pune. तो मैंने बच्चों क्या यहाँ पे value transfer किया ना? Yes, it can be purchased in another place with the help of money, children. So that is basically what is called as the transfer of value. बच्चों दो चीजों में आता है, from one person to another person and from one place to another place. Now, children, those points they highlight to us what are the primary functions of money and the secondary functions. Now, the last point, children, that we have here, it refers to the contingent functions. Contingent, children, they are not like matlab compulsory we can say, but they are being performed by money. So number one, measurement of national income. Children, as far as national income is concerned, हमने कभी इसका definition पढ़ा हुआ था, that national income is the money value of all the goods and services produced in a country during one accounting year. So did you just notice, children, कि हमारे देश में कितने goods and services produce किए गए थे, वो सबका वैल्यू जब हम लोग पैसे में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोला जाता है नेशनल इनकम. So national income, children, is again expressed in terms of money. अच्छा, और अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. तो लैंड को बच्चों रिवॉर्ड क्या मिलता है, रेंट. लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस. कैपिटल को इंटरेस्ट, और बिजनेसमैन को प्रॉफिट. तो ये सब चीजों को भी हम लोग किस तरीके से बच्चों, इट्स ऑल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. फिर आता है बच्चों बेसिस ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लोन्स. बच्चों लोग हम लोग जो बैंक्स में पैसा रखते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स क्या करती है कि लोगों ने जो पैसा रखा रहता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट. तो उसके जरिए बैंक्स दूसरे लोगों को क्या देती है, क्रेडिट देती है. अच्छा, फिर इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग. चिल्ड्रन, मैंने जाके 10 लाख रुपए एक बैंक में रखा, बैंक ने क्या किया, उसमें से थोड़ा पैसा रखा कि अगर मैं मांगने के लिए आ गया तो मुझे देना पड़ेगा, और बचा हुआ किसी को लोन करके चेक दे दिया. वो चेक लेता फिर अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करेगा, फिर वो बैंक भी क्या करता है, उसमें से थोड़ा पैसा अपने पास रखते हैं, फिर थोड़ा पैसा किसी और को लोन करके देते हैं. एंड दिस मनी, चिल्ड्रन, कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग. दैट इज कॉल्ड एज बेसिस ऑफ क्रेडिट. अच्छा, पॉइंट नंबर 3, चिल्ड्रन, इट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ. बच्चों इमेजिन करना, अगर पैसा होता ही नहीं था, फिर मेरे पास अगर 50 लाख का एक घर है, तो उस पैसे को मैं कभी लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाता था ना. अभी पैसा है तो उसकी वजह से होता क्या बताओ, कि मुझे जब भी लगेगा तो मैं वो घर बेच के बच्चों उसके बदले में 50 लाख रुपए का इंतजाम कर सकता हूं. सो किसी भी असेट को बच्चों पैसे में कन्वर्ट करना आसान होता है. सो एनी असेट, क्या बोला देखो, एनी असेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी. जैसे कि a person can purchase gold if he wants, he can sell it and purchase government securities या फिर bonds. तो एक आदमी गोल्ड खरीद सकता है, फिर बाद में गोल्ड को बेच के जो पैसा आएगा उससे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स खरीद सकता है. सर्टिफिकेट्स होते हैं बच्चों डिपॉजिट के. एंड फाइनली चिल्ड्रन, इट एस्टिमेट्स द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. ये क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमने वर्ड्स पढ़े ना, वी गॉट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हमारे देश का प्रोडक्शन ना चिल्ड्रन. अच्छा, टोटल सेविंग्स कितने हैं हमारे देश में, चलो टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितना हुआ है. तो ये सब चीजें किसमें काउंट की जाती है चिल्ड्रन, इन टर्म्स ऑफ मनी.
और फिर गवर्नमेंट को चलो टैक्स कलेक्ट करना आसान होता है, फिर गवर्नमेंट बजट भी आसानी से बना सकते हैं। अभी जब पैसे की बात आती है चिल्ड्रन, तो वी हैव वन कॉन्सेप्ट दैट कम्स अप हियर चिल्ड्रन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। आपने बहुत बार सुना हुआ है चिल्ड्रन ब्लैक मनी के बारे में। इट्स हाई टाइम दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब होता है बच्चों लोग एनी काइंड ऑफ मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश, जो पैसा आप कैश में रिसीव करते हो लेकिन उसका कुछ अकाउंटिंग नहीं होता है बच्चों लोग, या फिर जिस पैसे के ऊपर आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है, द मनी अगेंस्ट विच यू नॉट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी। तो जिस पैसे, जैसे कि बच्चों लोग अगर मैंने 10 लाख रुपए कहीं से कमाए लेकिन फिर मैंने वो 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं भरा, फिर मेरा 10 लाख रुपए का इनकम क्या कहलाएगा? ब्लैक मनी। या फिर एग्जाम्पल के लिए मुझे 10 लाख रुपए मिला है लेकिन मैं ये बता नहीं पा रहा हूं कि वो 10 लाख रुपए कहां से मिला। अगर मेरा सैलरी होता तो मैं डायरेक्टली बोल देता था कि हाँ दिस मनी आई हैव अर्न थ्रू माय सैलरी। बट चिल्ड्रन अगर किसी ने मुझे ब्राइब किया, रिश्वत दी है, फिर 10 लाख रुपए का मैं अकाउंटिंग नहीं कर सकता ना। सो चिल्ड्रन ब्लैक मनी लीगल भी हो सकता है फिर इलीगल। जैसे अभी मैंने बोला ना रिश्वत लिया तो फिर वो क्या होगा? इलीगल होगा। लेकिन बच्चों लोग मेरा सैलरी है लेकिन फिर वो मैंने दिखाया नहीं और उसके ऊपर मैंने टैक्स पे नहीं किया तो फिर वो लीगल है चिल्ड्रन, देन ऑल्सो इट इज ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी की वजह से फिर बच्चों लोग बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज आ जाते हैं ना, जैसे कि रिश्वतखोरी, करप्शन, ओके, भ्रष्टाचार बोलते हैं ना, ब्राइबरी होता है चिल्ड्रन, ब्लैक मार्केटिंग, या फिर होर्डिंग होता है। बहुत सारे गुड्स को पता है गोडाउन में स्टॉक करके रखा जाता है ताकि उसका शॉर्टेज होगा मार्केट में, फिर प्राइस बढ़ेगा और प्रॉफिट कमाने को मिलता है। हाँ, लेकिन ये सब बच्चों लोग इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दे विल क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। सो इकोनॉमिक, political and social instability are created in the economy due to black money। तो काला धन बोलते बच्चों उसका होना इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो रिसेंटली बच्चों लोग नरेंद्र मोदी जी ने जो डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, एक बहुत बड़ा हथियार था बच्चों लोग, जहां पे बहुत सारे देशों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है ताकि ब्लैक मनी खत्म हो जाता, कि आपको अपने पास जो करेंसी होता है उसको बैंक्स के पास डिपॉजिट करके नया करेंसी लाना पड़ता है। तो वहां पे ब्लैक मनी रहेगा तो आपको जाके किसी न किसी बैंक को बताना पड़ता है, तो आपका मनी फिर अकाउंटिंग होता है। लेकिन उसको अगर ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे तो फायदा है, नहीं तो फिर इंडिया में जिस तरीके से हुआ था तो आधे से ज्यादा बैंक मैनेजर्स who are involved in converting that black money into white money। तो अल्टीमेटली जितना पैसा पहले मार्केट में था अभी उसका 98% वापस से मार्केट में आ गया, मतलब ब्लैक मनी बाहर नहीं गया, बिकॉज द demonetization was not properly and efficiently implemented by the government, so it will have its drawbacks children। So a very interesting children, at the same time a very informative topic children that we have studied here। So what we will be doing is, like in the coming lecture I'll tell you about the exercise that we are going to solve, and along with that children we will also be talking about chapter number 3 which is actually related to maths। So here children I'll be discussing with that next topic। तो next lecture में children मैं आपको exercise solve करा के देता हूँ और फिर हम लोग वहीं पे थर्ड वाले चैप्टर के साथ स्टार्ट कर लेंगे, right? So that's all for today children, thank you very much, bye everyone, take care and see you in the next lecture।